Hi. Hi, myself Sangeeta and he's my brother Parag. I think he's a blessed child कि वो आज ऋषिकेश में है और डॉक्टर के अंडर में है, डॉक्टर आर.के. गुप्ता. वो हमारे लिए भगवान है, next to God. Okay. So I'll just share, I'll not say a story, an incident which has happened in our life and which was very very scary. ये बहुत ही स्कैरी है और किसी के साथ भी होगा तो ये जरूर जैसा आज हमको डर लगा आई थिंक वैसा ही डर सबको लगेगा. सो दिस हैपेंड from 7 July he was not feeling well and 7 July this year. Okay, so let me explain you, we both are fitness instructor, we are the dancer, we are the choreographers, we make people fit. Okay. And suddenly you know इसको कुछ motions की problem शुरू हो गई 7 July से. He started going for 2 times 3 times and then it increased to say 12-13 times and then the blood started coming. Okay. So it went off for in the stool. Yeah, it went off for 20 days. We consulted few doctors there. They said कि कुछ ulcer है. They were not able to locate क्या होने वाला कुछ. And I was supposed to move out, and he was handling. He was supposed to take care of all the classes. So I got scared. I said, Parag, you're not well. So let me see what is happening. And doctor suggested to go for colonoscopy. So I took him for colonoscopy. He was there and चल रहा है. Colonoscopy के पहले डॉक्टर ने मुझे बोला आपके बाकी रिपोर्ट्स तो ठीक है, आप क्यों आए यहाँ पे? ऐसे नहीं, आप एक बार कर लो. You were in which city? Kolkata. We belong to Kolkata. Yes. You went to a Kolkata hospital. Yeah. Yes. So while colonoscopy, doctor called me inside and he said the report needs to be sent for biopsy. So that line was, I was not ready for this. I said, what bullshit they are saying? I don't know. क्या बोल रही है? हम तो एक क्लोनोस्कोपी कराना है, बायोप्सी के लिए भेजेंगे. बोले we suspect something. I was shattered with this line. I don't know मैं क्या करूँ, कैसे रिएक्ट करूँ. तो मैंने कुछ नहीं बोला. I consulted my doctor जिनसे हमारी बातचीत चल रही थी. उन्होंने भी मुझे ये बोला कि it's 95% ऐसा है. Get a CT scan done and things will be confirmed. तो मेरे को तो वहीं घबराहट शुरू हो गई and then I said no, I cannot trust Kolkata's doctor and I need to move. तो इसको तो कुछ बताया नहीं, घर गए, घर में भी किसी को नहीं बताया. नेक्स्ट डे इसकी सीधे फ्लाइट की टिकट कराई बिकॉज आई वॉज नोइंग AIG इज बेस्ट, एशियाज बेस्ट प्लेस हॉस्पिटल एंड द डॉक्टर्स आर रियली गुड एंड दे ट्रीट. इनकी जो प्रॉब्लम थी वो अच्छा ट्रीट करते हैं बिकॉज तब तक तो ये पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है. बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, वो वहाँ जाके सॉल्व हो जाएगा. तो वी फ्लू सैटरडे, हम आ गए. सैटरडे आने के बाद वी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर द, हम लोग एडमिशन लेने की. बट थैंकफुली अगेन गॉड इज ग्रेट. तो इसके बड़े पापा हैदराबाद में रहते हैं. सो दे केम, दे सेड कि व्हाई यू स्टेइंग इन हॉस्पिटल, हमारे घर चलो, यू लुक फिट, तुमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, घर चलो, अपने देखेंगे. मंडे वी वेंट टू डॉक्टर सजेस्टेड फ्यू मोर टेस्ट एंड CT scan and then on Tuesday we got to know that he is suffering from colon tumor which is having cancer. Again things came out like this and this is what the fact is. So we had to accept the fact. He got shattered, I got shattered because his age is 32. And जो भी एज हो, इसके लिए तो कभी कोई रेडी नहीं होता है. Things went on and then we met Dr. Reddy. He said कि एक PET scan कराओ, ट्यूमर है, उसको हम लोग सर्जरी करके विल रिमूव इट. PET scan हो गए, PET scan के रिपोर्ट्स आ गए, बायोप्सी के रिपोर्ट्स आ गए. And then again we met Dr. Reddy and he said कि it's fine, he'll be all right. एक सर्जरी करना है and then things will be good. Then he sent us to Dr. Rao. Dr. Rao explained us everything and after explaining, he said कि surgery will be done, but before surgery he needs some chemo and radiation. Okay. So this was again a shocking thing for us. We were not prepared for it. Then he said कि now I need to see everything more deeply. I need a pelvis MRI. So we need to see कि ये disease कहीं और फैला है कि नहीं. We did it. बहुत painful था ये सारे testing and you know. I think rather seeing him suffering like this, it was very bad feeling to see him and we can't help him and he used to suffer. Mental torture था हमारे सबके ऊपर, पूरे फैमिली के ऊपर. By the time इसकी छोटी बेबी, इसके वाइफ को बुला लिया हम लोगों ने, you know, and इसके जिया जी आ गए, सब फैमिली मेंबर्स सब आ गए हमारे पास. तो after this, but thankfully MRI reports was better. Then they said we can directly go for surgery and then we'll see what happens next. Okay. So his surgery went off well and surgery हो गई, ट्यूमर निकाल दिया गया. सर्जरी के बाद he was in ICU for 2 days and everything was fine. फिर वापस से उन्होंने बायोप्सी के लिए रिपोर्ट भेजा. So report came after say 10 days. Then we met with the doctor.
हम लोग लगा सब ठीक है, अब हम जाएंगे अपने घर, इज फाइन, एब्सोल्युटली गुड. वी मेट विद द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेड यू नीड टू मीट विद द ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गए. ऑन्कोलॉजिस्ट ने एक नया चैप्टर खोला हमारे सामने कि नाउ इट हैज एंटर्ड टू द नॉड्स, sort of 26 knots. The disease is then 21 knots, and for which he needs chemotherapy. That was again a moment of shock, I can say. But हम कुछ नहीं कर सकते हैं. अगर आप एक जगह चले गए, एक बार आप गए, वो जो बोलेंगे आपको वो करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको एंड तो पता ही है. अगर आप नहीं करोगे तो क्या होने वाला है. सो ठीक है, केमो की बात हुई. ऑन्कोलॉजिस्ट 2, 3, 4, 5 ऑन्कोलॉजिस्ट से हम लोग मिले. एंड ऑपरेशन के पहले भी वी हैव टेकन रिव्यूज फॉर 5 बेस्ट डॉक्टर्स, बॉम्बे से, चेन्नई से, कोयम्बटूर से, सबसे हम लोगों ने बात की. एवरीवन सेड द सेम थिंग, सर्जरी सर्जरी सर्जरी. केमो की बात हुई. बाय द टाइम हमारे पास आया न्यूज़, ऋषिकेश में एक ऐसे डॉक्टर है जो इनको बिना कोई केमोथेरेपी के ऐसे ही ठीक कर देंगे. तो सुन के तो बहुत मजाक ही लग रहा था, बिकॉज हम तो ऑलरेडी डर गए थे बहुत ज़्यादा. केमो लगेगा, रेडिएशन लगेगा, तो कोई ऐसे मजाक क्यों कर रहा है हमारे संग. लग रहा था कोई इमोशनली हमको हर्ट कर रहा है और ज़्यादा. देन ट्रस्ट नहीं हुआ. देन वी स्पोक टू वन ऑफ द पेशेंट जो हैदराबाद से ही है. दे हैव बीन हियर एंड दे हैव बीन ट्रीटेड वेल. उनसे बात हुई. फिर एक्चुअली सच बोले तो मन में शक आया फिर से कि पता नहीं ये पेशेंट को सिखा दिए होंगे या यू नो इनके ही कुछ लोग होंगे जो पेशेंट बन के हमसे बात कर रहे हैं. और क्योंकि वो क्वेश्चन की हमारे जो रिलेटिव क्वेश्चन है कि भाई ट्रीटमेंट क्या होगा. हाँ, जाते हैं, बहुत पॉजिटिविटी मिलता है वहाँ जाके, और बस यही ट्रीटमेंट में पॉजिटिविटी से कैंसर ठीक हो जाता है. अच्छा, हम इतने नेगेटिव बंदे हैं क्या. बहुत ही कंफ्यूजिंग था. देन दे सेड कि मेरे को 3 महीने से खाना नहीं खाया था, थ्रोट कैंसर था. वहाँ गए, 3 दिन में रोटी खाने लग गए और अभी मैं एकदम ठीक हूँ. हमने आपने टेस्ट कराया? नहीं, हम टेस्ट कराएंगे नहीं. आपने टेस्ट नहीं कराया? नहीं, हम क्यों टेस्ट कराएं, हम तो शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे मॉल में, अच्छे से खा रहे, मुझे टेस्ट की जरूरत ही नहीं. हमें लग रहा है पागल हो रही क्या बोल रही. तो हम लोग तो और ही कंफ्यूज हो गए कि जरूरी इनका ही बंदा है. कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, ये इनका भाड़ा में लाया हुआ बंदा है जो ये सब बोल रहा है, और कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो रहा है. फिर हम लोगों ने डॉक्टर से बात की. अभी कोई भी डॉक्टर होगा वो सीरियसली चले, हेलो यस बोलिए क्या बात है. डॉक्टर ओके कम डाउन एंड विल सी, माय डॉक्टर्स विल सी. ये डॉक्टर है कि हर बात का जवाब देते हैं हंस के, तो और शक बढ़ गया कि ऐसा भी कोई डॉक्टर होता है जो इतना हंस के बार बार जवाब देता है और फोन तुरंत उठा लेता है. नहीं तो लोग फोन ही नहीं उठाते हैं. कौन अंदर बंदर कोई डॉक्टर को डायरेक्ट फोन मिला ले, किसकी हिम्मत है. नागेश्वर रेड्डी को कोई फोन मिला लिया क्या आज तक. हमको तो 6 घंटे वेट करने पड़ते हैं और ये डॉक्टर बार बार फोन उठा लेते हैं मेरे. और जितने क्वेश्चन पूछते हैं हंस के जवाब देते हैं. इरिटेट भी नहीं होते कि मत आओ तुम अपने पास ही रहो, जो करना करो. सो वी वर नॉट एबल टू ट्रस्ट, बिकॉज ऐसा कभी हुआ ही नहीं लाइफ में कि डॉक्टर के पास गए और इतना अच्छे से हमको हैंडल करते ही जा रहा है. और दूसरा ये कि हमें डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट होगा. आपका भाई 200% ठीक हो गया, मजे करो, आप तो केक काटो. ये लाइन बोले मेरा तो दिमाग घूम गया. केक काटे भाई, करोगे क्या. केक तो बाद में काटेंगे, क्या करोगे आप ये तो बताओ. बस आप आ जाओ, फिर आप देखिए आपका भाई एकदम ठीक हो जाएगा. सर सब ठीक है, क्या करोगे आप मेरे भाई के साथ, ये बता दीजिए. वो कोई नहीं बता रहा है कि क्या करेंगे. देन वी स्पोक टू समवन एल्स. इनसे बात हुई, एक नंबर और मिला, उनसे बात की. वो भी यही गोलमोल करके बात कर रहे हैं कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉजिटिविटी है. ये बोले आपको मोर दिखाएंगे, हाथी दिखाएंगे. इधर में हमने क्या जू में घूमने जा रहे हैं, हमको तो ट्रीटमेंट कराना है. क्या हो रहा है यहाँ पे. तो एब्सोल्युटली इट वाज आउट ऑफ द माइंड, आउट ऑफ द बॉक्स कि कोई बंदा ऐसे बोलेगा और हम वहाँ ऐसे चले जाएंगे. थैंकफुली फैमिली मेंबर्स वर देयर, तो इनकी बातें हम लोग स्पीकर में रखते थे, सुनते थे. एंड देन व्हाट ब्रॉट अस हियर वाज कि केमो 1 महीना बाद लगेगा. डॉक्टर ने बोला 17 को सर्जरी हुई, 17 को ही लगेगा. तो वी हैड गुड टाइम. तो वी थॉट ऑफ कि तुमको आराम तो ऐसे भी करना है. तुम घर में आराम करेगा, 4 लोग तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारे सामने रोएंगे, तुमको रुलाएंगे. इससे अच्छा है अपने ऋषिकेश चलते हैं, अपने वहाँ आराम करेंगे. ओके. और डॉक्टर किससे मिलते हैं ना कि वो इतना मजे कराने वाला बात कर रहे, तो देखते हैं क्या होने वाला है. देखते हैं क्या मजे होंगे. कुछ नहीं होगा, बुरा तो नहीं होगा, अच्छा होगा तो मैजिक हो जाएगा. चलो. सो वी केम विद दिस थॉट. वी वर सपोज्ड टू ब्रिंग ऑल द फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, बट थोड़ा सा डर गए थे कि सबको उठा के ले जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है हमारे संग. तो लेट्स वी बोथ गो टुगेदर एंड सब फैमिली मेंबर्स को हम लोग कैलकाटा भेज दिया. तुम सब जाओ, हम देखते हैं क्या होगा. और साथ में हम डरे रहे थे. तो मैंने यश को बोला भाई तुम मेरे संग चल.
मैं अकेले नहीं जाऊंगी इसके संग। कहीं मैं पकड़ के बिठा लिया हमें। भाई तो मेरे संग चल, तो वो बॉम्बे से मेरे संग आया, फिर पहले पैसे लेके आओ, फिर भेजेंगे वापस। मेरे पास कोई हथियार ही तो ऐसे ही टूटा हुआ है, हम अकेले क्या कर लेंगे। राइट। ठीक है, डॉक्टर बोल रहे मजे कराएंगे। फिर तो इतना कंफ्यूजिंग स्टेज था। और ट्रस्ट में, और हम लोग को ये बोला गया था कि भी आप आएंगे, रिसोर्ट है ये मोर, और हमको ले जा रहे होटल में। प्रीति मैम हमको टांग के होटल ले गई। तो हम आपको कहाँ ले जा रहे भाई, आप तो बोले थे रिसोर्ट में ले जाएंगे। तो बोले कि नहीं आप यहाँ चलिए। हम यहाँ क्यों जाए, हम नहीं जाएंगे यहाँ पे। सो एवरीथिंग वाज लाइक, अभी मुझे हंसी आ रही है, इतना कंफ्यूजिंग है। बट एक एक करके चीज पता चला। एंड देन वी केम देयर। हम लोग थोड़ा कंफ्यूज थे। प्रीति मैम से मैंने काफी क्वेश्चन आंसर किया, वो भी बेचारी जवाब देती जा रही। फिर डॉक्टर साहब खुद आ गए, साक्षात आ गए। तो उनसे भी मिला, उनसे भी मैंने यही पूछा कि डॉक्टर आप करने वाले क्या है। बोले चलिए आपको घुमा के लाते गंगा किनारे। भाई कोई बता क्यों नहीं रहा होगा क्या, हम यहाँ घूमने थोड़ी ना आए हैं। फिर भी डॉक्टर साहब लोग गंगा किनारे घुमाने लगे। भाई रिस्पेक्ट है, कुछ बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे। अच्छा पर्सनालिटी और हाइट ऐसी मार दी एकदम, बट मुझे तो हम क्या कर लेंगे। तो चलिए गंगा जी घूमने चलते हैं। तो उन्होंने सबको घुमाया, फिर मुझे थोड़ा साइड में ले गए, इधर आओ संगीता बेटे बोले। फिर इन्होंने मुझे अपना जो समझाया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दोज एनर्जी दोज वाइब। तो मुझे उस समय चीज क्लियर हो गया कि इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। ही इज गोइंग टू प्ले विद द माइंड। जो माइंड को डॉक्टर ने ऐसे घुमाया है, वो उसको ऐसे घुमाने वाला है। सो आई वॉज लिटिल कॉन्फिडेंट कि नहीं, जो होने वाला है अब अच्छा होने वाला है। एंड नेक्स्ट डे तक तो वी वर लाइक पूरा ट्रस्ट। जो बोलते हैं ना कि जो ट्रस्ट ऐसे था, वो ट्रस्ट तो ऐसे हो गया। अब तो हमको लग रहा है ये होटल मेरा बाप का है। ये ऐसे चौड़ा होके घूम रहे हम लोग। पानी, कोकोनट वाटर प्लीज। So things have changed so much. It's like actually a magical moment, you know. एक रात में ये क्या हुआ? Right. So I think I must say we are the blessed child कि हम यहाँ आए, यहाँ तक पहुँचे। और जितने लोगों ने भी हमको हेल्प की, we are really really thankful and thankful to universe for creating such human you know, I think a God in the guise of a God in front of us. So thank you doctor. इतना भरोसा, और इनकी आंखों में एक तेज है, ज्यादा देरी आप देख ही नहीं सकते हो। ज्यादा देरी देखोगे तो लगता है कि कुछ इफेक्ट होने लग जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। So when you came here and you met him, how many counseling sessions you had? We had one, एक तो इनकी चली 4 घंटे चली। Okay. I'll tell you, काउंसलिंग सेशन में तो हम थोड़ा बहुत ऐसे भी हो रहे थे, बट बाकी लोग जो बैठे हैं वो ऐसे भी नहीं हो रहे। Then we were talking कि ऐसे भी नहीं होना था क्या डॉक्टर के सामने, because they were so engrossed। मुझे लगा इन लोग तो बार-बार सुनते होंगे, हम तो पहली बार ही सुन रहे थे, बट ये ऐसे बैठे थे, ऐसे बैठे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, सुनते ही जा रहे हैं, हम भी सुनते जा रहे हैं, और जाते ही जा रहा है दिमाग में क्या हो रहा है कुछ। कहाँ हम आसमान में उड़ रहे हैं, या हम क्या मैजिक देख रहे हैं, कुछ जादू हो रहा है हमारे संग। एंड जब कोई घर वाले फोन करके पूछते क्या हुआ आज, तो पहले तो बोलते थे आज सिटी स्कैन हुआ, 4 बार खून निकाल लिया, डॉक्टर के हम लोग लाइन लगे बैठे हैं, अभी डॉक्टर देखने वाला है, डॉक्टर ये बोला है। बोला आज क्या हुआ, डॉक्टर बहुत बात की हम लोग से। वो आज बताएं कि वो किन से इंस्पायर्ड है, अब्दुल कलाम सर का बात। घर वाले भी थोड़े कंफ्यूज हो रहे कि तुम लोग क्या करने गए हो वहाँ पे भाई। और डॉक्टर हम लोग को बादाम खिलाए हैं और कॉफी पिलाए हैं, और अब हम लोग लंच करने वाले हैं यहाँ पे, और फिर हम लोग गंगा किनारे नहाने जाएंगे। तो घर वाले 2 दिन पूछे, तीसरे दिन पूछना ही बंद। हमने देखिए अब आप फोन मत करिए, हम आपको नहीं समझा सकते यहाँ क्या होने वाला है, बट कुछ हो रहा है। अभी यहाँ आप आ जाइए तो फील हो जाएगा। तो अभी देखिए एक एक करके, आज मैंने एक जन को और बुला लिया, मैंने फिर तुम आके देख लो। मैं तो सबको फोन करके बोली देखो जो मैजिक हो रहा है, यू नीड टू कम हियर एंड फील इट। आई कांट एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व, यू हैव टू रियली फील इट, यू हैव टू सी द पर्सन क्या होने वाला है। बिकॉज इफ यू से दिस सेल्फलेस लव, द अनकंडीशनल लव, एंड वी हैव नॉट येट पेड इवन सिंगल पाई। हमसे पैसे नहीं, हम रात रात भाग जाएंगे तो क्या हो जाएगा। हम तो खा पी रहे मौत से, अभी तक तो कितना बिल बढ़ा दिया होगा बढ़िया से, और अब डॉक्टर साहब हमको घर भी बुला रहे।
तो ये कौन से डॉक्टर है? Hmm. सो ये जो भी डॉक्टर है इनको मीनियंस नमस्कार हमारा। एंड आई विल से प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती है कि वी वे ब्लेस्ड कि हमें ये मौका मिला और हम यहाँ आ गए भरोसा करके या ना भरोसा करके। बट यस, वी वुड लाइक टू कन्वे दिस टू ईच एंड एवरीवन, यू मस्ट कम हियर। I will not say you'll be healed, what will happen to you. You will see a magic here. So we were blessed. Thank you so much, doctor. Thank you so much. Thank you. So, what change you felt in yourself after the 3 days counseling or 2 days counseling? From the time I came to know, only there was a 2 time I broke down. When I got the CA report, that time I told her to look after my family. And second, when the doctor told me that you have a severe cancer and you will be treated with chemo. But then I thought कि it has come. Now we cannot change it. So उसको face करना है. मुझे बोला अब ठीक है, अब जो हो गया, टेस्ट कराएंगे, जो भी करना है, will cross this. No problem. I was strong enough. फिर जब ये खत्म हुआ, फिर से बायोप्सी की रिपोर्ट आई कि अब यार फिर अब केमो में जाना है। एंड पर्सनली मेरे को केमो में नहीं जाना था। ऐसे देयर विल बी सम अदर वे जिससे हम लोग इसको क्योर कर सकते हैं। देन सर का नंबर आया तो मैं उनसे बात करता था फ़ोन पे, क्योंकि आई एम वेरी प्रैक्टिकल बॉय। जिस फील्ड से हम लोग आए कि सर आप सब तो कर दोगे, लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा मैं ठीक हो गया। आप आओ, आपको मज़े आएंगे, मज़े से आएंगे। फिर बोले आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा बॉडी पे। हमने सर ड्यूरिंग 1 मंथ मेरे को कुछ फील नहीं हुआ, अपार्ट फ्रॉम रिपोर्ट्स कि हाँ रिपोर्ट्स बता रही है मेरे को कि मैं ठीक नहीं हूँ। अदरवाइज मेरे को सर्जरी के बाद भी मैं जल्दी से फिट हो गया और ऐसा कोई सेवरल प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोले ठीक है मज़े आएंगे, हमने ठीक है धीरे मज़े ही करने चलते हैं। एंड फिर जब मैं यहाँ पे आया तो जब इनसे काउंसलिंग हुई, दैट वाज माय फर्स्ट काउंसलिंग इन लाइफ जिसमें सिर्फ 4 घंटा मैं खड़े होकर सुना हूँ। ये तो हमेशा काउंसलिंग में मेरी इफ एंड बट ये क्वेश्चन, बट इनको सुन के ऐसा लग रहा था बस सुनते जाएं, जवाब भी मिल रहा है और सब समझ में आ रहा है। मेरे को वॉशरूम भी जाना था बट मैं जा नहीं पाया, आई वाज स्टैंडिंग स्टिल कि नहीं सर को सुनना है। फिर कुछ डाउट्स थे मेरे जो मैंने दीदी को बोला, तो फिर सर से नेक्स्ट डे मेरी पर्सनल सेशन अपॉइंट कराया गया। एंड उस समय जो एक 1% डाउट था कि ठीक है मैं इस बिलीफ पे जी लूँगा कि मैं एकदम ठीक हूँ ऑल, लेकिन ये एज मेरा 33 है, सो आई हैव टू लुक आफ्टर माय फैमिली। वुड हैव बीन 60, वुड हैव ब्लाइंडली ट्रस्टेड एंड गो इट। तो मैंने बोला सर कुछ तो टेस्ट होगा जिससे मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि यू नो आई एम फिट एंड फाइन। और एटलीस्ट जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वहाँ पे इफ आई से समबडी की नहीं आई एम फिट एंड फाइन, दे विल ऑलवेज आस्क आप रिपोर्ट दिखाइए आप कैसे ठीक हो गए। सो मैंने बोला सर को मेरे को प्रूफ कि मेरे को सोसाइटी में जाके अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि आप इससे बाहर निकल सकते हो, बट उनको ये प्रूफ चाहिए कि मेरे वीडियो से या मेरे ज्ञान से वो नहीं आ जाएंगे। तो सर ने बोला कि नहीं, अगर आप ये करोगे तो आपका माइंड और फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होगा, सो डोंट एवर डू दैट। आप जिस फ्रीक्वेंसी में आपको हम लोग ने सेट किया है आप उसी फ्रीक्वेंसी में रहो एंड यू विल सी द मैजिक। एंड आई एम विटनेस द मैजिक विद द ट्रीटमेंट ऑफ देव सर, दीक्षा मैम, उनकी पूरी टीम के साथ। आई थिंक आई वॉज नॉट एबल टू बेंड, और ये बेल्ट हमेशा मेरे को लगा के घूमना पड़ता था। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, कोई पेन नहीं है, कुछ नहीं है, आई एम फीलिंग बस उठ जाऊँ, मेरे को कोई बोले कि डांस कर लो मैं भी सबको डांस करा दूँ, ऐसी फीलिंग आ रही। Great. That's really great to hear. Yeah. And congratulations that you are healed. Yes. And congratulations for your new life, That's new true. journey. New With journey your की- family, with your Not friends. only with the health, the way he has changed the thought process of looking for life, कि आप लाइफ को कैसे देखना है। Yeah. क्योंकि हम लोग हमेशा हर चीज में प्रैक्टिकल चीज ही ढूंढते हैं।